Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 12 of Software Requirement Engineering, which is based upon brainstorming, phases of brainstorming. So, before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. So, in the previous lecture, we discussed about two requirement gathering techniques. One is workshops, which is basically a structured, assisted, and collaborative process. Structured, assisted, and collaborative process used for, particularly we are discussing this for requirements gathering, so it's used here for requirements gathering, and it's headed by a facilitator. And then we discussed about brainstorming. So brainstorming is a technique which is headed by a leader, and scribe will record all the session of brainstorming. And in this session, this is basically most probably it would be some sort of mind mapping session, which might be, we can say, informal, and the users or all the participants, they are just free to present their ideas in a free flow, rather than workshops in which we will be going to give some tickets to all the participants, and they will be presenting ideas according to their tickets. But in brainstorming, we discussed that we can discuss our ideas in free flow, means anyone can discuss his idea at any time. So we can say it's a comparatively informal technique. So in today's lecture, we will be completing this brainstorming session by discussing some steps of brainstorming, which includes idea generation, idea reduction, and the sub phases of idea reduction. So basically there are two main phases of brainstorming. First one is idea generation, and the next one is idea reduction. In the first phase, which is basically idea generation, what we are going to do, we will be presenting multiple ideas. But remember, these ideas are free from any platform dependency, language dependency, time barrier, resources barrier, so we can say this idea generation targets out of the box thinking. We discussed that out of the box thinking means you have to generate multiple ideas regardless of the platform, regardless of the language, because sometimes we can't present multiple ideas because we think this is unimplementable, it can't be implemented in some given time in particular language. So in idea generation, we have to implement this idea of out of box thinking, means we will present multiple ideas regardless of the tool, regardless of the language or time barrier, cost, and all the resources. We forget for a minute. We can say that in out of box thinking, we forget for a minute what we know and what can't be done due to politics, due to language and platform barrier, or time and cost constraints. Bring your insights into the development of this project. ठीक है, हमारा फोकस इस चीज पे है
कि हमने मल्टीपल आइडियाज और इनोवेशन लेके आनी है, इसलिए हमने ये लैंग्वेज बैरियर, डिपेंडेंसी, हर चीज को छोड़ देना है और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। बाद में जो आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, वी विल डिलीट देम, लेकिन अभी इस स्टेज पे हमने मल्टीपल आइडियाज लेकर आने हैं। In the next step, this is idea reduction. Now, idea reduction basically means कि अब हम आपस में डिस्कस करेंगे in brainstorming session, और जो आइडियाज हमें लगेंगे कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, we will delete them, ठीक है। लेकिन पहले हमने मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करने इन आइडिया जनरेशन। So, आइडिया जनरेशन को देख लेते हैं। When a person comes up with an idea, he or she writes it down. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, मीन्स कि जब हमारे पास कोई आइडिया आता है तो बेसिकली इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकती है कि द पार्टिसिपेंट प्रेजेंट्स द आइडिया एंड फैसिलिटेटर राइट्स इट डाउन, writes it down। और सेकंड जो आइडिया हो सकता है वो क्या हो सकता है कि the presenter or the participant presenting the idea writes down it in his own words, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम वो आइडिया उस पर्सन के जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। सो हम ये बात करते हैं कि बेहतर जो आइडिया है इन दोनों में से वो सेकंड वाला है, जिसमें पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करता है आइडिया को, और पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करता है आइडिया को और साथ में वो अपने वर्ड्स में उसको राइट डाउन करता है, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द आइडिया दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है द आइडिया इज कैप्चर्ड इन दैट पर्सन्स ओन वर्ड्स, ठीक है। सेकंड वन इज आइडियाज आर नॉट लॉस्ट, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ वेट करें 5 मिनट्स बाद, 5 मिनट से पहले कोई और बात कर ले, उसके बाद आप बात करें, ठीक है, अपने टर्न पे, तो क्या होगा कि उस टाइम पे वेट करने में हो सकता है आपका आइडिया आपको भूल जाए, ठीक है, या किसी और ने कोई आइडिया प्रेजेंट कर दिया तो आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए बेसिकली। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम कहते हैं कि जो आइडिया जिसने दिया है वो उसको अपने वर्ड्स में 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दे और उसको फिर हम पोस्ट कर देंगे किसी एक न्यूट्रल वॉल पे ताकि सब उस आइडिया को देख सकें। सो टू प्रिवेंट डिलेज इन द क्रिएटिव प्रोसेस, सो विच क्रिएटिव प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। हम ये भी नहीं चाहते कि फैसिलिटेटर वेट करता रहे, पहले एक बोले फिर दूसरा बोले, जिसको जो आइडिया आया है वो उस आइडिया को एक पेज पे लिख के हमें दे दे और हम एक एक करके उस पर डिस्कशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने लेट्स से कोई आइडिया प्रेजेंटर वेट कर रहा है कि फैसिलिटेटर उसको लिखे, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेट्स से एक आइडिया है और प्रेजेंटर पार्टिसिपेंट उसको प्रेजेंट करता है एंड द आइडिया बेसिकली इज ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब मैंने एक आइडिया है, एक बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे एक सिस्टम बनाया है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वेट, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इस पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे, और मैं ये चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जब भी कोई नई एंट्री होती है, यानी एम्प्लॉयर्स के लिए कोई इंसेंटिव दिया जाता है या कोई नई चैरिटी है या कोई भी ऐसा काम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। फीचर ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन बेसिकली मैं ये प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जब ऑनलाइन नोटिफिकेशन मैंने लिखा है तो जो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस ऑनलाइन नोटिफिकेशन के फीचर को मल्टीपल वेज में परसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक यूजर है, वो कहते हैं ऑनलाइन नोटिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये है, अब ये जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, लेट्स से कि एक यूजर इसको परसीव करता है कि दिस इज बेसिकली नोटिफिकेशन बाय ईमेल, ठीक है। दूसरा यूजर कहता है नहीं, दिस इज नॉट नोटिफिकेशन बाय ईमेल,
दिस माइट बी अ नोटिफिकेशन बाय SMS, ठीक है। तो इस तरह जितने यूजर्स होंगे वो उसको डिफरेंट वेज में परसीव करेंगे, और हमारा यहाँ पर इशू ये आता है कि अब जिस यूजर ने बेसिकली ये आइडिया दिया था उसने कोई और इसको, उसका बेसिकली मतलब था कि नोटिफिकेशन होनी चाहिए जब कोई नई एंट्री होती है तो यूजर को एक ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली उसका आइडिया कुछ और था और डिफरेंट लोग डिफरेंट वे में परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको वो अपने वर्ड्स में लिख दे ताकि जितने भी लोग हैं वो उसको न्यूट्रली उसी आइडिया को परसीव करें जो उसने प्रेजेंट किया है। The facilitator collects ideas and posts them on a wall in the meeting room. Then what happens कि जब सारे आइडियाज अपनी अपनी लैंग्वेज में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो फैसिलिटेटर उन सबके आइडियाज लेके उन्हें मीटिंग रूम में जाके पोस्ट कर देता है। अगेन, नो क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज कैन बी टॉलरेटेड। जिस तरह से हमने वर्कशॉप्स में पढ़ा था कि वर्कशॉप्स में कोई क्रिटिसिज्म पर्सनली किसी आइडियाज पे अलाउ नहीं है, इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी वी आर नॉट अलाउड फॉर क्रिटिसिज्म, ठीक है। The process tends to have a natural end. At some point, the stakeholders will simply run out of ideas. ठीक है, अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम प्रमोट करते हैं आइडिया जनरेशन में कि आपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, मीन्स यू हैव टू गिव मैक्सिमम आइडियाज। हमारा फोकस इस चीज पे है कि हमारे पास मैक्सिमम आइडियाज आए। तो इसका जो प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस मींस आइडिया जनरेशन प्रोसेस फेज ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, बेसिकली उसका एक नेचुरल एंड होता है। यानी जब आप मैक्सिमम आइडियाज हम प्रमोट करते हैं और जब सारे आइडियाज खत्म हो जाते हैं, मींस सब प्रेजेंट कर चुके होते हैं आइडियाज, तो एंड में क्या होता है कि प्रोसेस उस वक्त जाके एंड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज आइडिया रिडक्शन। सो व्हाट हैपेंस इन आइडिया रिडक्शन, बेसिकली आइडिया रिडक्शन के 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट वन इज प्रूनिंग आइडियाज। बेसिकली प्रूनिंग आइडियाज में हम जितने आइडियाज हैं उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं और कुछ आइडियाज को हमने डिलीट करना होता है। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग आइडियाज। सो ग्रुपिंग आइडियाज में हमने जितने आइडियाज फिल्टर्ड आइडियाज हैं या जो आइडियाज फिल्टर हो के आ चुके हैं, जिनके बारे में हमें यकीन है कि ये वो सारे आइडियाज हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उन आइडियाज को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइनिंग फीचर्स। अब उन आइडियाज, बेसिकली वो आइडियाज हमारे डिफरेंट फीचर्स हैं जो हमने बनाने। जितने फीचर्स हमने प्रपोज किए हैं कि ये वो फीचर्स होंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट का पार्ट होंगे, उनको हमने 1 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन देनी है, दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग फीचर्स। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटाइजिंग आइडियाज। और प्रायोरिटाइजिंग आइडियाज में क्या होता है कि जो मल्टीपल आइडियाज हमने डिफाइन किए थे, अगेन जो कि इम्प्लीमेंटेबल हैं, जो हम बनाएंगे, उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटाइज करेंगे यानी हम बताएंगे पहले हमें ये वाला फीचर बनाना है, फिर हमने नेक्स्ट ये वाला फीचर बनाना है। सो बेसिकली दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ आइडिया रिडक्शन, व्हिच इज द सेकंड फेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट वन इज pruning ideas, basically filtering ideas. So prune those ideas that are not worthy of further investment. यानी जिन आइडियाज के बारे में हमें ये लगता है, बेसिकली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इसलिए कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स की इनपुट चाहते हैं। तो जब हमें आइडिया हो जाए कि ये वो आइडियाज हैं या ये वो डिफरेंट फीचर्स हैं जो नहीं बन सकते, इम्प्लीमेंटेबल नहीं है ड्यू टू सम लैंग्वेज बैरियर, ड्यू टू सम कॉस्ट इश्यूज, और जो भी आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है जिसका बैरियर है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स की, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो हम इस स्टेज पे उन आइडियाज को फिल्टर करके निकाल देंगे, ठीक है। वी विल प्रून दोज आइडियाज, वी विल फिल्टर दीज आइडियाज आउट, जो कि हम कहते हैं कि नहीं बन सकते, नॉट वर्दी ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट। The facilitator asks the participants whether idea is worthy of further consideration, ठीक है। तो बेसिकली हमने पार्टिसिपेंट से पूछना है कि उनके हिसाब से कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट से पूछेगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की ही हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे ही हमने आइडिया लेना है। सो वो कहते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि कौन सा आइडिया ऐसा है जो हम रखेंगे और बाकी सारे आइडियाज को हम फिल्टर कर देंगे। इफ यू डोंट हैव सम ऑफ दीज यू डिडंट ब्रेनस्टॉर्म वेल। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज होंगे जो कि आफ्टर फिल्ट्रेशन आएंगे। एक आइडियाज वो होंगे जो कि फिल्टर्ड आइडियाज होंगे,
फिल्टर्ड आइडियाज वो आइडियाज होंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, बेसिकली दैट आर नॉट वर्दी ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट, जिनको हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो आइडियाज हैं जो कि बनाने का कोई फायदा नहीं है, बन नहीं सकते, ठीक है। सो अगर हमने वो आइडियाज फिल्टर नहीं किए और हमारे हिसाब से हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इतना अच्छा कंडक्ट कर लिया है कि कोई आइडियाज ऐसे है ही नहीं जो ना बन सके, सो वी डिड अ ब्रेनस्टॉर्म वेल। इट मींस जब भी हमने अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग परफॉर्म करनी है तो कुछ ना कुछ आइडियाज जरूर ऐसे होंगे जो कि हमने फिल्टर करने हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सेशन ऐसा हो जिसमें सारे आइडियाज बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए कि वो सारे आइडियाज बन सकते हैं। सो बेसिकली वो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी नहीं की, इसका मतलब है हमने कोई ना कोई चीज उसमें मिस की है, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसा हो जिससे इम्प्लीमेंट हम ना कर सकें। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग आइडियाज। नाउ इन ग्रुपिंग आइडियाज व्हाट बेसिकली डू, हमने जितने आइडियाज होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट टाइप्स में या ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। स्टार्ट ग्रुपिंग सिमिलर आइडियाज, ठीक है। जितने आइडियाज आपको लगते हैं कि ये वो आइडियाज हैं जो कि सिमिलर हैं, उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल इंटरफेस रिलेटेड इश्यूज मैं एक ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ, डेटाबेस रिलेटेड फीचर्स हम किसी नेक्स्ट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, इसी तरह से प्रोसेस रिलेटेड फीचर्स वो हम किसी और ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इनकी इंटरकनेक्टिविटी भी हम शो करा सकते हैं। सो बेसिकली हमने करना ये है कि जितने फिल्टर्ड आइडियाज आए हैं, यानी जिनके बारे में हमें यकीन है कि हमने बनाने, उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सो स्टार्ट ग्रुपिंग सिमिलर आइडियाज में नेम द ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक ग्रुप है जिसको मैंने कह दिया न्यू फीचर्स, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें कोई इशू है और उसको मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ, तो लेट्स से पहला ग्रुप मैंने बना दिया जिसमें मैंने सारे नए फीचर्स लिखे हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप मैंने वो बना दिया जिसमें जितने करंट फीचर्स थे उनकी इन्हांसमेंट्स मैंने लिखनी है, ठीक है। इन्हांसमेंट्स टू करंट फीचर्स, अब ये वो है जिसमें मैंने सिर्फ इन्हांसमेंट्स मेंशन करनी है। सो ये डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, नए फीचर्स अलग कर दिए, इन्हांसमेंट्स टू करंट फीचर्स वो मैंने अलग कर दिए, यूजर इंटरफेस एंड ईज ऑफ यूज इश्यूज, ठीक है। लेट्स से हमने इंटरफेस रिलेटेड इश्यूज अलग कर लिए, डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज हमने अलग कर लिए, और थर्ड जो हमने डिवाइड कर दिया बेसिकली वो न्यू फीचर्स के लिए है। सो हमने अपने आइडियाज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कि ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइडियाज है, ये सेकेंड ग्रुप ऑफ आइडियाज है, एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ आइडियाज, एंड वी हैव डिवाइडेड दीज आइडियाज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आइडिया रिडक्शन में ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंट आइडियाज को पोस्ट कर दिया था वॉल पे, नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं और कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर हमने मल्टीपल स्टिकी नोट्स पे पोस्ट करके आइडियाज लिख दिए, और नेक्स्ट में हमने क्या किया कि फाइनेंशियल रिलेटेड का अलग ग्रुप बना दिया, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड आइडियाज इनका हमने अलग ग्रुप बना दिया, सप्लायर इश्यूज इनका ग्रुप अलग है, प्रोसेस इश्यूज इसका ग्रुप अलग है। सो वी हैव डिवाइडेड आइडियाज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसकी बेस पे हमने डिवाइड कर दिया ताकि आगे हमारा काम आसान हो जाए। सो बाकी आगे काम क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है, विच इज द थर्ड स्टेप ऑफ आइडिया रिडक्शन। और इसमें हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट फीचर्स को डिफाइन करना। In defining features, what we have to do, we basically facilitator asked to provide a one sentence description कि जिसने जो आइडिया प्रपोज किया है उसने उस आइडिया की वन सेंटेंस डिस्क्रिप्शन भी देनी है। आप एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो आइडिया क्या करे। इसी तरह से ensure that participants have a common understanding of the feature, ठीक है। So basically इसका फायदा ये है, जैसे अभी ऑनलाइन नोटिफिकेशन की मैंने एग्जांपल दी थी, कि इससे फायदा ये होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि जिसने नोटिफिकेशन की फंक्शनैलिटी दी है उसका मतलब क्या है, ठीक है। सिमिलरली हम एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उसका ब्रेनस्टॉर्म्ड फीचर्स देखते हैं, और साथ में उस फीचर की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज होम लाइटिंग ऑटोमेशन, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लाइटिंग ऑटोमेशन कर रहे हैं। सो फीचर है इसका ऑटोमेटिक लाइटिंग सेटिंग्स, ठीक है, एक फीचर है। अब ऑटोमेटिक लाइटिंग सेटिंग्स अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती तो कुछ लोग होंगे जिनका मतलब होगा ऑटोमेटिक का मतलब है कि शाम को लाइट यानी लाइट्स अगर कम हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है, और बाकी ऑफ हो जाए। सिमिलरली
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 6 o'clock पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है, और अगर जब हम लेट्स से सुबह हो जाती है, 10 बज जाते हैं सुबह के, तो लाइट्स कम हो जाएं या ऑफ हो जाएं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जिसने ये फीचर प्रपोज किया, बेसिकली वो कहते हैं कि होम ओनर कैन क्रिएट प्रीसेट टाइम बेस्ड स्केड्यूल्स फॉर सर्टेन लाइटिंग इवेंट्स टू हैपन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे, ठीक है, कि हम एक दिन के टाइमिंग्स की बेस पे डिसाइड कर लें कि हमारी लाइटिंग सेटिंग्स क्या होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज सेल्स ऑर्डर एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर एंट्री सिस्टम में हम कहते हैं एक फीचर किसी ने प्रपोज किया फास्ट। अब फास्ट का मतलब क्या है, जिसने फीचर प्रपोज किया ही बेसिकली मींस रिस्पांस टाइम विल बी फास्ट इनफ नॉट टू इंटरफेयर विद टिपिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सिमिलरली डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ये ट्रैक कर रहा है कि हम एक पर्टिकुलर डेवलपर या प्रोग्रामर एक वीक में कितना कोड लिखता है और उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर एक मंथ में कितना कोड लिखता है और उसमें कितने एरर्स हैं। सो इसमें फीचर है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। अब अगेन नोटिफिकेशन में देयर कैन बी अ कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन ये हो सकती है कि वो नोटिफिकेशन बाय ईमेल देना है, बाय एसएमएस देना है, सो वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन। फीचर डेफिनेशन है ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल व्हेन समथिंग हैज चेंज, ठीक है। बेसिकली नोटिफिकेशन का मतलब है ईमेल नोटिफिकेशन की बात हो रही है। सो इन डिफाइनिंग फीचर्स यहाँ तक हमने कवर कर लिया है कि हम जो फीचर्स हैं डिफरेंट, उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब एक दफ़ा हमने आइडियाज़ जनरेट कर दिए बेस्ड ऑन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उसके बाद हमने उनको फिल्टर किया या प्रून कर दिया उन आइडियाज़ को जो हमें लग रहा था कि दैट इज़ नॉट वर्दी ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट, या हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना हमें उन पर कॉस्ट हमें लग जाएगी उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो व्हाट वी डिड कि हमने आइडियाज़ को पहले डिफाइन किया और रिड्यूस कर दिया। बेसिकली आइडिया रिडक्शन के फिर मल्टीपल स्टेप्स हैं, जिसमें प्रूनिंग की, उसके बाद जब हम फिल्टर कर चुके थे तो जो आइडियाज़ रह चुके थे हमने उनको डिफाइन किया, 1 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन। फिर हमने उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। प्रायोरिटाइज में द आइडियाज़ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, एंड दो बेसिकली स्कीम्स है फॉर प्रायोरिटाइजेशन जो ज़्यादा यूज़ होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। फर्स्ट वन इज cumulative voting, which is basically $100 test, ठीक है, and the second one is critical, important, useful categorization. अब जो फर्स्ट वन है which is basically cumulative voting, so cumulative means कि जब हम cumulative का वर्ड यूज करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि अब इकट्ठा combined voting की बेसिकली बात करें कि cumulative यानी ओवरऑल combined रिजल्ट। सो कम्युलेटिव वोटिंग में हमें यही काम करना है कि $100 टेस्ट की बात करें ना। व्हाट इज $100 टेस्ट? बेसिकली हम इसको $100 टेस्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम सपोज करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, पार्टिसिपेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद $100। या इनिशियली हम सपोज करते हैं कि आपने सारे पार्टिसिपेंट्स को $100 दे दिए, ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट these dollars to the ideas presented, ठीक है। अब जो आइडियाज प्रेजेंट करने हैं बेसिकली उन्हें $100 में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक आइडिया है जिसमें मैं कहती हूँ द सिस्टम शुड बी फास्ट, दूसरा आइडिया है जिसको मैं कहती हूँ द सिस्टम शुड बी शुड हैव ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सिस्टम, और इसी तरह से हमारा कोई थर्ड आइडिया है। सो बेसिकली होना क्या चाहिए कि अगर इनके दो आइडियाज हैं तो आपने सपोज करना है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि इसको मैं $60 असाइन कर दूं अगर ये 2 आइडियाज हैं, और जो नेक्स्ट वाला है इसको लेट्स से मैं $40 असाइन कर दूं। तो बेसिकली जो $100 हैं वो डिवाइड करके मैंने दोनों आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि जितने आइडियाज प्रोवाइडेड हैं उनको कितनी वेटेज देनी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको लगेगा कि ज्यादा प्रायोरिटाइज करने वाली बात है या ज्यादा प्रायोरिटी वाला आइडिया है उसको आप वेटेज ज्यादा देंगे,
इसी तरह से जिसकी आपको प्रायोरिटाइजेशन कम लगेगी या जो आप कहेंगे नहीं ये जस्ट यूजफुल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आप उसको कम कर दें, लेकिन टोटल ओवरऑल जो सम है दैट शुड बी 100, ठीक है, तो $100 इसलिए कह रहे हैं। द सेकेंड वन इज critical important useful categorization. Now what happens here, critical important useful categorization में क्या होता है कि जितने भी आइडियाज हैं, बेसिकली लेट्स से हमने ये दोनों आइडियाज लिखे हुए थे, तो आपने हर आइडिया के बारे में बताना है कि वो क्रिटिकल है या वो इम्पॉर्टेंट है या यूजफुल है। तो बेसिकली वी हैव टू डिफाइन दीज थिंग्स कि वो क्रिटिकल आइडिया है। क्रिटिकल का मतलब है, हमने बात की थी, क्रिटिकल का मतलब है कोई ऐसा आइडिया जो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता या कोई ऐसा फीचर जो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकेगा, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर ये फीचर एडेड नहीं होगा तो उस केस में क्या है, सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा, फेलियर नहीं होगा, सिस्टम का सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन इनफ रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए। थर्ड वन इज यूजफुल। यूजफुल का मतलब ये है कि नाइस टू हैव, बहुत अच्छी बात है अगर ये फीचर एडेड है, अगर नहीं है तो इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, सिस्टम काम करेगा लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज यूजर फ्रेंडली होगा। तो दिस इज बेसिकली यूजफुल। तो ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट यूजफुल स्कीम भी है कैटेगराइजेशन की, और दूसरी कम्युलेटिव वोटिंग यानी $100 टेस्ट भी है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब लाइव का मतलब है कि एक जगह पर विदाउट यूजिंग एनी वेब टूल, ऑनलाइन टूल, हमने क्या करना है कि सारे एक लोकेशन पर होंगे, एक जगह पर होंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा काम हमने करना है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक लोकेशन पर बैठे हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल यूज नहीं कर रहे। सो दिस इज वेब ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, अब दूसरा ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम कोई टूल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी क्लासेस हमारी टीम्स पे होती है, ठीक है। अब अगर आप टीम्स को या आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, टीमव्यूअर यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बेसिकली आपका पर्पस ये है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है, लेकिन सब एक लोकेशन पर नहीं है बल्कि डिस्टेंट लोकेशन पे है। सो यू कैन मीट ऑन विद द हेल्प ऑफ सम वेब टूल, ठीक है, ऑनलाइन टूल, तो वो हमारी वेब बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली वेब बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स वी हैव टू यूज सम टूल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हिच इज बेसिकली वेब बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। हम ऑनलाइन टूल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं टीम्स पे। सो बेसिकली दैट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वेब बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग और अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या फर्क होता है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई एक टाइप लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो, स्ट्रक्चर्ड भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई टाइप वेब बेस्ड भी हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो। तो स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली मीन्स कि वी हैव टू यूज सम स्टेप्स, लाइक स्ट्रक्चर्ड नाम जब भी किसी प्रोसेस के साथ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स यू हैव टू यूज सम स्टेप्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अगर कोई भी ऐसी टाइप जिसपे कोई पर्टिकुलर रूल्स हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से पहले प्रॉपर आइडिया सर्कुलेट होगा, इनविटेशन होगी, या प्रॉपर स्टेप्स वाइज काम हो रहा है, अगर जिसको इनवाइट करना है, लेट्स से मैं उसे कहती हूँ पहले आपने बात करनी है फिर किसी और ने बात करनी है, इस तरह मैं प्रॉपर इन्विटेशन के साथ बात कर रही हूँ। सो दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में अगर काम हो रहा है किसी भी प्रोसेस के साथ, तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में काम कर रहे हो, सो दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस कि आपके कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन फ्री फ्लो, ठीक है, आप फ्री फ्लो में काम कर सकते हैं, जिसको जो आइडिया आएगा वो उसमें उसको प्रेजेंट कर देगा। जरूरी नहीं है कि सारे आइडियाज इकट्ठे ही प्रेजेंट हो या फ्री फ्लो में डिस्ट्रीब्यूट हो कि जिसने हाथ खड़ा किया उसको आइडिया प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप अपनी टर्न पे हर एक ने अगर बात करनी है, प्रॉपर स्टेप्स में हम काम नहीं कर रहे, जिसको जिस वक्त आइडिया आएगा उसने उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट शेयर कर दिया, सो दैट इज बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने बात करनी है कि विदाउट स्टेप्स बात करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में वी हैव टू फॉलो प्रॉपर स्टेप्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट वन इज
नेगेटिव और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ व्हाट इज नेगेटिव और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग? जब हम नेगेटिव या रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इसका मतलब है हमारा ये काम होता है कि इस सेशन में हम वो सारे रिक्वायरमेंट्स या वो सारे फीचर्स डेवलप करें विच डोंट हैव टू बी डेवलप्ड। ठीक है, जैसे वी कैन से द सिस्टम should not use red color as background, या the system should not track record of previous students। ठीक है, इस तरह की यानी ऐसे फीचर्स जो कि आपको लगता है कि अगर नहीं बनेंगे तो हमारा सिस्टम फेलियर की तरफ जा सकता है, बेसिकली वो हमने यहाँ पर लिखना है, यानी वी हैव टू नरेट दिस फीचर्स एज नॉट विद द हेल्प ऑफ नॉट। तो सिस्टम शुड नॉट डू दिस। अब हमें पता चल जाएगा अच्छा सिस्टम ने ये काम नहीं करना तो सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सब काम करेंगे तो फेलियर की तरफ चले जाएंगे, इसका मतलब है हमने इन कामों को अवॉइड करना है ताकि हम फेलियर की तरफ ना जाएं। तो दिस इज नेगेटिव और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट वन इज ग्रुप पासिंग टेक्निक। अब ग्रुप पासिंग टेक्निक का क्या मतलब है? ग्रुप पासिंग टेक्निक का मतलब ये है कि ये वो बेसिकली टेक्निक है जिसमें हमने एक ओवरऑल दो टाइप्स हैं जो आपस में क्लोज जिनकी रिजेम्बलेंस है। एक है आपकी ग्रुप पासिंग टेक्निक और दूसरी है डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है? ग्रुप पासिंग टेक्निक का मतलब ये है कि अगर सारे ग्रुप की हम बात करते हैं कि एक दफा हमने आइडियाज प्रेजेंट करने को कहा और participants are divided into groups. So group passing technique का मतलब है every member of the group presents an idea, या यूं कर सकते हैं कि one member of the group presents an idea and then passes to the other member of the group for improvement। ठीक है, one member of the group presents an idea, you कह सकते and then passes to the other member of the group for improvement, for the other members of the group for improvement, and at the end every member of all groups have participation in ideas। ठीक है, सो बेसिकली होगा क्या कि एक मेंबर ग्रुप का कोई भी जो आइडिया देता है और उसके बाद वो किसी भी बाकी सारे मेंबर्स को वो देता है, यानी कि आपने साथ वाले मेंबर को आइडिया दिया, उसने उस पर कमेंट किया, फिर साथ वाले मेंबर, इसका मतलब है हर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज पर्टिकुलर व्यू अबाउट दैट आइडिया और उसने उस पर इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। अब जो डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी डिफरेंस होता है इसमें। इसमें है होल ग्रुप गिव्स वन आइडिया का मतलब है कि एक पर्टिकुलर आइडिया पे पूरा ग्रुप काम, लाइक अगर ग्रुप का एक मेंबर है वो आइडिया दे, बाकी सबसे पूछ ले ना पूछे, मींस ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए जो पूरे ग्रुप का आइडिया है। लेकिन ग्रुप पासिंग टेक्निक में जितने मल्टीपल मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स उस पर इनपुट दे रहे होते हैं। सो दिस इज ग्रुप पासिंग टेक्निक। यह हो जाएगा कि ये किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्केचेस हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं। जैसे मैंने एक अगर स्क्रीनशॉट बना दी है लाइक दिस,
ठीक है। और इसी तरह मैंने दूसरी स्क्रीनशॉट यूं बना दी है, और मैं यहाँ पर एक अदद इस तरह से करके राउंडेड रेक्टेंगल बना दी, मुझे बेसिकली टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और साथ में मैं एक टेक्स्ट एरिया लगा के और रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि व्हेन you sorry when you select this option, so what happens here, ठीक है। वो मैं सारा यहाँ पर लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, और साथ में मैं एक एरो इंसर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे सबमिट का बटन है, और या यहाँ पर बल्कि यूँ कर लेते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। सो ये एक टेक्स्ट फील्ड था हमारा, और फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, एक एरो मैंने इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पर इस एरो के साथ मैंने इसके साथ एसोसिएशन बना के, और लेट मी मेक इट डार्क सो दैट आपको इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ मेंशन कर देती हूँ, व्हेन यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन दिस विल हैपन्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अगले के साथ भी ये लिख दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली वही चीज़ लिखी हुई है, एक प्रपोज फंक्शनैलिटी है, उसको हम एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और कुछ स्टेप्स या एक्शंस हैं जो हमने लेने हैं इसके रिजल्ट में, जो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने इस तरह से ये काम करना है तो वो ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट, जैसे अगर आपने किसी को कोई चीज़ समझानी है और मैं एक पैराग्राफ लिख दूं, लेट्स से 40 लाइंस ऑफ कोड लिख दूं, 40 लाइंस एक पैराग्राफ लिख दूं, तो आपको वो चीज़ समझाना मुश्किल होगी, समझना मुश्किल होगी, टिविटी। बेसिकली 3 चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम उस चीज़ की स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें हु द प्लेयर्स आर, व्हाट हैपेंस टू देम, एंड हाउ इट हैपेंस, ठीक है। सबसे पहले हु द प्लेयर्स आर। अब प्लेयर्स का मतलब ये है कि ये कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, या इनको इनपुट प्रोवाइड की जाएगी तो कोई एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई टेक्स्ट फील्ड है, उसको मैंने फिल करना है तो कोई एक्शन हो सकता है, इसका मतलब है वो भी प्लेयर हो सकता है। इसी तरह से कोई बटन है, ये जो भी चीजें हैं जिनके लिए कोई इवेंट्स लग सकते हैं, बेसिकली वी कैन कंसिडर देम एज प्लेयर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू देम। अब व्हाट हैपेंस टू देम में ऐसे आ सकता है कि जैसे अगर कोई बटन है तो उस पर क्लिक भी हो सकता है, ऑन होवर भी हो सकता है, और सबमिटेड भी हो सकता है। इसी तरह से ये सारे जो इवेंट्स होते हैं आपके, वो बेसिकली आपके व्हाट हैपेंस टू देम में आ जाते हैं, ठीक है। यानी आपको एक तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रोल्स है जिन पे इवेंट्स लग सकते हैं। अगर उन पे इवेंट लगे हुए हैं तो आप उनकी स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, वो आपके प्लेयर्स हैं। फिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्या कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या कोई रेडियो बटन है जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है, या किसी पे कर्सर रखा जा रहा है, माउस रखा जा रहा है। सो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम स्टोरी बोर्डिंग कर सकें। इसी तरह से हाउ इट हैपेंस, वो कैसे, क्या यूजर ने कोई इनपुट दी है, क्या यहाँ पर जब हम सबमिट करते हैं तो ऑटो सिलेक्ट हो के आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, क्या कोई पर्टिकुलर इनपुट है जिसपे आपने कोई चेक लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो वी कैन डू स्टोरी बोर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात कर रही हूँ, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर की टर्म्स में हम बात करें कि अगर हमें ये सब चीजें पता होंगी तो हम आराम से उनकी स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं। often used in combination with another technique। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स लेना शुरू करें एंड आई हैव जीरो रिक्वायरमेंट, मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहला सेशन कंडक्ट कराना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू मैं सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं ले सकती। सो बेटर अप्रोच ये है कि हम इसको किसी और टेक्निक के साथ मिलाकर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यूज से एक दफा रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर ली और स्टोरी बोर्डिंग से उसको रिफाइन कर दिया, या
मैंने लेट्स से क्वेश्चनर से पहले सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली, फिर स्टोरी बोर्डिंग से उनको रिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये जो यस बट सिंड्रोम हमारा आ जाता था, बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसको हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, विच इज यस बट सिंड्रोम, ठीक है। सो जो यस बट सिंड्रोम था उसमें यही होता था कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती थी लेकिन क्लियर नहीं होती थी, मीन्स कस्टमर ने कुछ और कहा है और हमें लग रहा था कि कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हम यस बट सिंड्रोम को भी टारगेट कर सकते हैं। मीन्स पहले से हमने ग्राफिकल इंटरफेस से कस्टमर को समझाया हुआ है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कस्टमर को वो समझ नहीं आएगा। कैप्चर आइडियाज वाया ब्रेनस्टॉर्मिंग और इंटरव्यूइंग। तो बेहतर ये है कि पहले आप जब आइडियाज कैप्चर करते हैं तो या इंटरव्यू कर लें या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें और या वर्कशॉप सेशन कंडक्ट करा लें और कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले लें, आइडियाज कैप्चर कर लें। फिर आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट इन अ स्टोरी बोर्ड टू शो यूजर व्हाट इज अंडरस्टूड, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये चीजें आ जाएंगी तो फिर आप एक स्टोरी बोर्ड के थ्रू कस्टमर को बता दें कि मुझे ये चीज समझ आई है, तो क्या रियली आपको यही चाहिए या देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, सो बेसिकली आइडियाज जो पहले कार्टून्स बनते थे और मूवीज बनती थी, सो बेसिकली वो इस तरह की डिफरेंट एनिमेटेड शेप्स के साथ बनता था, वही काम अब हम कर रहे हैं। उसी को हम अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं ताकि अगर रिक्वायरमेंट्स पे कोई इश्यू आ रहा है तो वो भी हम इसी तरह से क्लियर कर लें। जैसे ये डिफरेंट एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोट की है, ये डिफरेंट कार्टून्स हैं और एक ग्राफिक्स है, उनको हम जल्दी जल्दी मूव कराते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा जब मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ग्राफिक्स नहीं है बल्कि ये कोई एनिमेटेड मूवी है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता, वो बेसिकली ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो रैंडमली नहीं, सीरीज में हमने जल्दी जल्दी उनको मूव कराना होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी बोर्ड में अगर हम देखें तो स्टोरी बोर्ड सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल जैसे अर्ली रिव्यू ऑफ द यूजर इंटरफेस, ठीक है, कि हमें अच्छा आइडिया हो जाता है कि यूजर इंटरफेस हमने किस तरह से देना है। इसी तरह से इट इज एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ज्यादा कॉस्ट रिक्वायर नहीं होती। आपको पता है अगर आपने स्केचेस भी बनाने हैं, विच इज बेसिक टाइप ऑफ स्टोरी बोर्डिंग जिसमें हम हाथ से स्केचेस बनाते हैं, तो बड़ा इनएक्सपेंसिव का कैसा काम है, आपने एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और आपने उसके स्केचेस बना लेने हैं। यूजर फ्रेंडली, इनफॉर्मल एंड इंटरेक्टिव। तो यूजर फ्रेंडली है यानी आपको पता है कि इसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल इस तरह से है कि हमने को प्रॉपर, जब हम कार्टून्स और इस तरह के ग्राफिक्स पे काम करते हैं तो वो इतनी फॉर्मल मीटिंग नहीं रहती, दैट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल मीटिंग फॉर कैप्चरिंग आइडियाज। और इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव में आगे जो इंटरेक्टिव स्टोरी बोर्डिंग आएगी तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वाई इट इज इंटरेक्टिव। बेसिकली कस्टमर हमें साथ साथ इनपुट दे रहा है, इन्वॉल्व भी ज्यादा है, तो हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव हो जाएगा। इजी टू क्रिएट एंड इजी टू मॉडिफाई, ठीक है, एक दफा क्रिएट करना भी आसान है, किसी आसान से टूल पे हम इसका एक स्केच क्रिएट कर देते हैं और उसको मॉडिफाई करना या चेंज करना भी आसान है। जैसे कस्टमर कहते हैं इसको चेंज कर ले, फॉर एग्जांपल मैं एक जल्दी से हम एक स्टोरी बोर्डिंग की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बनाया वेब पेज बेसिकली मैं बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैंने इसमें कोई चीज़ इंसर्ट की है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक चार्ट इंसर्ट, अच्छा, अब ये चार्ट मैंने मेरा ख्याल है थोड़ा काम हमारा, जैसे ये चार्ट मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, और इस चार्ट को मैंने यहाँ इंसर्ट किया और दो के इसका साइज बहुत बड़ा है और वेब पेज का हमारा जो साइज है वो छोटा है। स्टोरी बोर्डिंग अब इसका मैं भी छोटा कर देती हूँ। अब इस एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका फॉन्ट में कर लूँ छोटा सा, ठीक है, तो चार्ट यहाँ पे मेरा पूरा है। अब कस्टमर से मैंने इनपुट लेनी है और कस्टमर मुझे कहता है कि नहीं आपने ये, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चार्ट रखा है, ठीक है, एक बटन रखा है व्यू स्टैटिस्टिक्स का और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर मुझे कहता है नहीं ये चार्ट यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब कस्टमर ने कहा था चार्ट शो होना चाहिए, मैंने चार्ट शो करा दिया। कस्टमर कहता है नहीं ये चार्ट यहाँ पर नहीं शो हो, मैंने चार्ट का कहा था लेकिन उसकी अलाइनमेंट ऐसे होनी चाहिए कि वो बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे आना चाहिए।
ठीक है। अब जब मैं देखूंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब है बजाय इसके कि मैं बाद में सारी चीज़ें बनाऊं और फिर उनको चेंज करूं, मैं कस्टमर का रिव्यू शुरू में ही इस इंटरफेस पे मेरा रिव्यू उस कस्टमर का आ गया है, उसने कह दिया कि यहाँ पर सारे आपने स्टाटस इस तरह से शो करा है। एड्रेसेस यस बट सिंड्रोम, अगेन हमने इसको यस बट सिंड्रोम को इसलिए हमारा सिस्टम टारगेट करा। सो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने स्टोरी बोर्डिंग भी कवर की और हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कवर की। स्टोरी बोर्डिंग के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी टाइप्स और टूल्स डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह उस पर आपकी असाइनमेंट भी होगी जिसमें आपने डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करके उन पे स्टोरी बोर्डिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। गुड लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।